Today I am going to discuss an important topic of plant physiology, that is your photosynthesis. I hope you will enjoy it. So what is photosynthesis? Photosynthesis is defined as the process in which the green plants manufacture their own food using simple inorganic compound, that is your carbon dioxide and water, and also in the presence of sunlight and plant pigment, that is your chlorophyll, to form the organic molecule, that is your glucose. So photosynthesis is the biological process in this earth in which carbon dioxide is fixed, in which carbon dioxide is reduced to form the carbohydrate molecule, that is your glucose. About 60 to 70 billion tons of carbon dioxide is annually fixed by all these green plants. And through this process of the photosynthesis, oxygen is evolved in the atmosphere. We can here write down the journal reaction, overall reaction of the photosynthesis, that is 6 times carbon dioxide plus 12 times water gives C6H12O6 plus 6 times oxygen plus 6 times water. We can here in detail study how oxygen is evolved, what is the mechanism behind this, how water is break down here, how carbon dioxide is reduced to the carbohydrate. We can study in detail. Now here, with the help of photosynthesis process, which form the organic molecule. Okay, that is your organic molecule. It is also called, this organic molecule is called as, this carbon compound is known as this glucose. Okay, these are the inorganic molecule. So photosynthesis, here we can see that the photosynthesis is the anabolic reaction. What is anabolic reaction? Anabolic reaction is that reaction, anabolic reaction is that reaction in which smaller molecules combines to get the larger molecule. Energy here is conserved in the form of larger molecule, which is released during the process of respiration. So here, and in the anabolic process, smaller molecule combine to give rise to the larger molecule. You can also remember that one important term, that is your catabolism. Catabolism is the process in which larger molecule break down into smaller molecules with the release of the energy. Anabolic reaction is also known as exothermic, and catabolic reactions are also endothermic. Okay, so here photosynthesis is divided into 2 steps. Okay, one is known as your light reaction and another one is known as your dark reaction, or we can say it as Calvin cycle. Okay, लाइट रिएक्शन हम उसको कहते हैं जो आपके पास लाइट की प्रेजेंस में होती है. दैट रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द लाइट फ्रॉम द सन. लाइट ऑफ द स्पेसिफिक वेवलेंथ जो आपके पास सन से आती है वो यूज होती है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को इवॉल्व करने के लिए, प्रोटॉन को रिलीज करने के लिए. लाइट रिएक्शन क्या काम करती है? वाटर को ब्रेक करती है, वाटर को ब्रेक डाउन करती है इनटू 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन. हियर वाटर जो है आपके पास, वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का जहां से आपके पास ऑक्सीजन रिलीज होती है. प्लांट में एक ऐसा वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स होता है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होता है जिससे कि आपके पास ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है. तो यहां पर वाटर जो है क्या काम करता है? वाटर इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर. जहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? ये वेरियस स्टेप्स में, साइकिल्स में चलते हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं? आपके पास एनर्जी कंपोनेंट बनाते हैं, एनर्जी कैरियर प्रोटीन बनाते हैं, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज नोन एज योर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, एंड आल्सो इलेक्ट्रॉन कैरियर molecule, that is your, and proton carrier molecule, that is your NADPH, nicotine adenine dinucleotide phosphate. ये जो आपके पास एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल जो है ये बने, आपके पास एनर्जी रिच कंपाउंड जो आपके पास बने, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जो आपके पास बने, ये यूटिलाइज होते हैं कहां पर? डार्क रिएक्शन में. हम इसको डार्क रिएक्शन इज द रॉन्ग टर्म, वी कैन से दैट कि ये डार्क रिएक्शन जो होती है डार्क में हमेशा नहीं होती है.
हमने इसको लाइट रिएक्शन का अपोजिट हमने इसको डार्क रिएक्शन कहा है। जो डार्क रिएक्शन होती है ये आपके पास लाइट में भी हो सकती है, ये आपके पास डार्क में भी हो सकती है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डार्क और लाइट, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डार्क रिएक्शन जो होता है ये डिपेंड करता है आपके पास सेल में, जो आपके पास जहां पर प्लांट की ऑर्गन्स में, ऑर्गेनली में जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है वहां पर आपके पास एटीपी बना है कि नहीं बना है, आपके पास NADPH बना है। अगर ये दो कंपाउंड्स बनते हैं तब जाकर ये डार्क रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या काम करता है? ये रिड्यूस हो जाता है यूजिंग द एनर्जी डेराइव फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी आती है ये उसको यूटिलाइज करके आपके पास क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। दिस ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी और इट मे बी स्टोर इन द स्पेसिफिक ऑर्गेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। सो जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो होता है ये लीफ में होता है, ये आपके पास प्लांट के पर्टिकुलर सेल्स में होता है, जहां पर आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? जहां पर आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये दो आपके पास लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आपके पास स्पेसिफिक एक ऑर्गेनली होता है प्लांट सेल के अंदर। जैसे कि आपने एनाटॉमी ऑफ द प्लांट जब आप पढ़ेंगे, जब आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जब आपके पास प्लांट के लीफ के अंदर आपके पास टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। वन इज नोन एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड अनदर वन इज नोन एज पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा, इनके अंदर आपके पास क्या होता है? एक इनके सेल के अंदर एक ऑर्गेनली होता है दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनली होता है, आपके पास डबल मेम्ब्रेन्स का होता है। ये डबल मेम्ब्रेन का ये ऑर्गेनली होता है। इसके अंदर दो चीजें होती है। वन इज योर कॉइन लाइक स्टार लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बोन्ड स्ट्रक्चर, दैट इज योर ग्रेना और इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज थाइलाकॉइड, ठीक है। यहाँ आपको इन डिटेल में आगे आपको बता देंगे। ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर डेंस लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन होती है ये आपके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड दी स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड के ऊपर होती है, ठीक है, जहां से आपके पास एटीपी और NADPH बनता है। आगे हम इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कैसे आपके पास एटीपी और NADPH बनता है इस थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड में स्पेसिफिक फीचर ये होता है, इसमें बहुत सारे पिगमेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे आपके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपके पास ये उसके बाद ये आपके पास इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स के पास से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है। आपके पास ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स बनते हैं। सेकंड वन इज योर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आपके पास डार्क रिएक्शन होती है। जो कैल्विन साइकिल है आपके पास, आपको मैकेनिज्म पढ़ाएंगे कि कैसे आपके पास कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी जो है ये एटीपी और NADPH रिड्यूस करके बहुत सारे आपके पास एंजाइम्स होते हैं और एक और कंपाउंड यहाँ पर एंजाइम होता है दैट इज योर राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, विबिस्को हम उसको बोलते हैं। तो ये आपके पास एक ऐसा एंजाइम होता है जो आपके पास क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में मदद देता है। आगे उसके बाद हम ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके पास फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। जैसे आपके पास लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, कैसे आपके पास फोटोसिंथेसिस उसमें